السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ آج 7 دسمبر 2024 ہے۔ اسلامک تاریخ کے حساب سے آج 4 جمادی الثانی 1446 ہجری ہے۔ پیش ہے آج کی کچھ اہم خبریں۔ مہاراشٹر کے نو منتخب وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنوس نے دعویٰ کیا ہے کہ ریاستی الیکشن میں ہندوتوا نے ان کے اتحاد کی فتح میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے ایک انٹرویو کے دوران کہا کہ ہمارے لیے ہندوتوا کا مطلب ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ یہ زندگی جینے کا ایک طریقہ ہے، اور بی جے پی کی ہمیشہ سے پالیسی رہی ہے کہ وہ سبھی کی ترقی کی کوشش کرتی ہے۔ دیویندر فڈنوس نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ مہا وکاس اگھاڑی نے پولرائزیشن کی سیاست کی اور منفی انتخابی مہم چلائی، جبکہ ہم نے مثبت سیاست کی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کانگریس نے خاص طور پر مسلم ووٹ حاصل کرنے کے لیے ہندوؤں کو دبانے کی کوشش کی، لیکن جب کسی کو ضرورت سے زیادہ دبایا جاتا ہے تو اس کا نتیجہ ہمیشہ الٹا ہی نکلتا ہے، اور وہی کانگریس اور مہا وکاس اگھاڑی کے ساتھ ہوا۔ اس خبرنامے کو جرمنٹائن ہاسپٹل کی جانب سے اسپانسر کیا جا رہا ہے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیالوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز ہر شعبے میں نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ایڈوانس کیتھ لیب، ایم آر آئی، آپریشن تھیٹر، آئی سی یو، 2D، الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطاپور۔ مہاراشٹر کے ممبئی میں بابری مسجد کی شہادت کی 32ویں برسی پر اذانوں کے ذریعے یاد دہانی کرائی گئی۔ رضا اکیڈمی کی جانب سے کھتری مسجد، بنیان روڈ، مینارہ مسجد اور مانڈوی پوسٹ آفس کے پاس تو اجتماعی اذان دی گئی، مگر اس دفعہ بھنڈی بازار چوراہے پر پولیس نے اذان دینے سے روک دیا۔ پولیس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ڈی سی پی نے سختی سے منع کیا ہے۔ اس موقع پر مینارہ مسجد پر رضا اکیڈمی کی قیادت میں اذان دینے کے بعد اجتماعی دعا بھی کی گئی۔ سپریم کورٹ آف انڈیا کے سابق جج جسٹس نریمن نے جسٹس اے ایم احمدی میموریل لیکچر میں ملک کے عدالتی نظام کو آئینہ دکھاتے ہوئے دو ٹوک لہجے میں کہا ہے کہ بابری مسجد کیس میں انصاف نہیں ہوا، بلکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ انصاف کے نام پر دھوکہ تھا۔ بابری مسجد کی شہادت کی 32ویں برسی پر ملک کے 26ویں چیف جسٹس جسٹس احمدی سے منسوب پہلے لیکچر میں جسٹس آر نریمن نے کہا ہے کہ بابری مسجد تنازع کے تعلق سے سپریم کورٹ نے کئی برسوں سے محیط جو فیصلے سنائے وہ سیکولرزم کے اصولوں کے مطابق انصاف پر مبنی نہیں تھے۔ انہوں نے بطور خاص 2019 کے اس فیصلے کا ذکر کیا، جس میں سپریم کورٹ نے یہ تسلیم کرنے کے بعد بھی کہ بابری مسجد کی شہادت غیر قانونی اور مجرمانہ عمل تھا، نیز مسجد سے قبل وہاں مندر ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ملا، مسجد کی جگہ مندر کی تعمیر کا حکم سنایا۔ انہوں نے اس بات پر بھی تنقید کی کہ جس جج نے بابری مسجد شہادت کے ملزمین کو بری کیا، اسے بعد میں اتر پردیش میں نائب لوک آیوکت مقرر کیا گیا۔ جسٹس نریمن نے کہا کہ میری نظر میں ان فیصلوں میں انصاف کے ساتھ سب سے بڑا دھوکہ یہ ہوا کہ سیکولرزم کے اصولوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا گیا۔ سپریم کورٹ نے ہاشم پورہ وحشیانہ قتل عام کے قصوروار پی اے سی کے اہلکاروں کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم جاری کیا ہے، جنہوں نے 1987 میں 42 مسلمانوں کو ان کے گھروں سے اٹھا کر بے دردی سے گولی مار دی تھی اور ان کی لاشوں کو ہنڈن ندی میں بہا دیا تھا۔ سپریم کورٹ میں جسٹس ابھے ایس اوکا اور جسٹس اے جی مستی پر مشتمل بینچ کے سامنے ان مجرمین کے وکیل نے یہ دلیل دی کہ یہ لوگ 2018 یعنی 6 سال سے جیل کی سزا کاٹ رہے ہیں، اسی لیے انہیں ضمانت دی جانی چاہیے۔ وکیل نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ان مجرمین کو ذیلی عدالت سے بری کیے جانے کے فیصلے کو دہلی ہائی کورٹ نے غلط طریقے سے مسترد کیا۔ وکیل امیت آنند تیواری نے جن 10 قصورواروں کی ضمانت کے لیے عرضی دائر کی، ان میں نرنجن لال، مہیش پرساد، جے پال سنگھ، سریش چندر شرما، رام دھیان، امبیر سنگھ، کنور پال سنگھ، بدھا سنگھ، محکم سنگھ اور ایک مسلم سمیع اللہ بھی شامل ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ ہاشم پورہ قتل عام کے مجرمین کے مقدمے کو سپریم کورٹ نے متعدد شکایت کے بعد غازی آباد سیشن کورٹ سے دہلی منتقل کرنے کی ہدایت دی تھی۔ دہلی میں 30 ہزاری کورٹ نے ناکافی ثبوت کا دعویٰ کرتے ہوئے مارچ 2015 میں قتل عام کے ان 16 مجرمین کو بری کر دیا تھا۔ ریاست اتر پردیش کے بنارس کے یو پی کالج میں طلباء کی شدت پسندی رک نہیں رہی ہے۔ بھگوا جھنڈوں اور جے شری رام کے اشتعال انگیز نعروں کے ساتھ کالج کے گیٹ پر طلباء نے ہنگامہ مچایا۔ کیمپس کی مسجد میں نماز پڑھنے سے روکنے اور ہنومان چالیسا پڑھنے کی ضد پر اڑے طلباء اور پولیس اہلکاروں کے درمیان دھکا مکی بھی ہوئی۔ کشیدہ حالات کو دیکھتے ہوئے پولیس نے مسجد پر تالا لگا دیا، جس کی وجہ سے جمعے کی نماز ادا نہیں کی گئی۔ 1992 کے بابری مسجد انہدام کے بعد یہ پہلا واقعہ ہے جب یو پی کالج میں کشیدگی کے سبب جمعے کی نماز ادا نہیں کی جا سکی۔ فرقے وارانہ ہم آہنگی کو نقصان پہنچانے کے الزام میں 3 نامزد اور 1 درجن نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے۔
बनारस में यूपी कॉलेज के तलबा का मंगल के रोज से शुरू हुआ हंगामा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली की शाही जामा मस्जिद में नमाज जुमा के खुतबे के दौरान शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी अचानक रो पड़े और इस दौरान उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से खास अपील भी की। दिल्ली की जामा मस्जिद के इमाम ने कहा कि 1947 में जिस हालत में हम खड़े थे, हम आज भी इससे भी बदतर सूरत हाल में खड़े हैं। मुल्क किस तरफ जाएगा ये कोई नहीं जानता। शाही इमाम अहमद बुखारी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को मुल्क के मुसलमानों से बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी को 3 हिंदू और 3 मुसलमानों को बातचीत के लिए बुलाना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म मोदी साहब, बहुत हो गया, जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं आप इंसाफ करें, मुसलमानों के दिल जीतें। वो छोटे लोग मुल्क का माहौल ख़राब कर रहे हैं, इन्हें रोकिए। मैं अपने नौजवानों से कहूँगा आप सब्र कीजिए। इमाम बुखारी ने यह अपील ऐसे वक्त में की है जब संभल में जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर हुए तशद्दुद में 4 मुस्लिम नौजवान शहीद हो गए थे। वहीं मुल्क के कुछ हिस्सों में मसाजिद के सर्वे के हवाले से अदालतों में दरख्वास्तें दायर की जा रही है। शाही इमाम अहमद बुखारी ने कहा है कि एएसआई ने हमें बताया कि दिल्ली की जामा मस्जिद का सर्वे करने का हमारा कोई इरादा नहीं है, लेकिन हुकूमत को संभल, अजमेर और दीगर मुकामात पर होने वाले सर्वे के बारे में संजीदगी से सोचना चाहिए। ये सब चीज़ें मुल्क के लिए अच्छी नहीं हैं। नाज़रीन, दिल्ली की शाही जामा मस्जिद के इमाम अहमद बुखारी के ख्यालात पर आपकी क्या राय है? आखिर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को 3 हिंदू और 3 मुस्लिम से बातचीत करनी चाहिए? आप अपने ख्यालात कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ नफरत और दुश्मनी का जहर इस हद तक सराद कर गया है कि अब फूल जैसे मासूम बच्चे तक महफूज नहीं हैं। मध्य प्रदेश के रतलाम के पार्क में 8 से 10 साल के 3 मुस्लिम बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाने और इन्हें जय श्री राम बोलने पर मजबूर करने का वीडियो वायरल हो रहा है, जिस पर मुसलमानों में शदीद गम व गुस्सा है। पार्लियामेंट के ऐवान वाला यानी राज्यसभा में कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट अभिषेक मनु सिंघवी की नशिस्त के नीचे से नोटों की गड्डियां बरामद होने से हंगामा बर्पा हो गया। इस मामले पर कांग्रेस के सीनियर लीडर और राज्यसभा के रुकन अभिषेक मनु सिंघवी ने हैरानी का इजहार करते हुए कहा कि इन्हें इस बारे में कोई इल्म नहीं है। उन्होंने इस मामले की मुकम्मल और शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया। ख्याल रहे कि जिस नशिस्त के नीचे से गड्डियां बरामद हुई, इस पर अभिषेक मनु सिंघवी बैठे थे। ये मामला उस वक्त मंजर-ए-आम पर आया जब राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने ऐलान किया कि मामूल की सिक्योरिटी जांच के दौरान मनु सिंघवी की नशिस्त नंबर 222 के नीचे नकदी गड्डियां पाई गई, जो तकरीबन 50,000 रुपये हैं। उन्होंने कहा कि यह मामला मेरे इल्म में लाया गया तो मैंने फ़ौरन जांच को यकीनी बनाने की हिदायत दी है। बांग्लादेश में हिंदू अक़लियतों के खिलाफ बढ़ते तशद्दुद पर मरकज़ी वज़ीर गिरिराज सिंह ने कहा कि तमाम हिंदुओं को इजराइलियों की तरह अपना दिफा करने की तरबियत लेना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बयान पोस्ट करते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि बांग्लादेश से सबक हासिल करते हुए हमारे मुल्क में मौजूदा सूरत-ए-हाल पर गौर करना चाहिए और तमाम हिंदुओं को अपने दिफा की तरबियत लेना चाहिए। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद से जिसमें 1200 यहूदी हलाक हो गए थे और 251 का अगवा कर लिया गया था, कुरोमेगा के नाम इजराइलियों को खुसूसी दिफाई तरबियत दी जा रही है। इसी तरह हिंदुओं को भी तरबियत लेनी चाहिए। वाज़ रहे कि मरकज़ी वज़ीर गिरिराज सिंह हमेशा से ही नफरत और शरपसंद बयानात देने के लिए मशहूर हैं। वो अक्सर एक मखसूस तबके को निशाना बनाते रहते हैं। रियासत तेलंगाना के दारुलहुकूमत शहर हैदराबाद के पुराने शहर में सयाहती सरगर्मियों को फ़रोग़ देने के लिए तारीखी चार मीनार और इसके अतराफ़ के इलाकों में खुसूसी रोशनियों के इंतज़ाम का फ़ैसला किया गया है। तारीखी चार मीनार देखने के लिए रोज़ाना हज़ारों की तादाद में सयाह अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क से पहुँचते हैं। चार मीनार और इसके अतराफ़ इलाकों में जैसे नया पुल, लाड बाज़ार और दीगर तारीख़ी इलाकों और इमारतों को खुसूसी रोशनी से मुनव्वर करने का मंसूबा तैयार किया गया है। कुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी को इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दी गई है। अथॉरिटी को प्रोजेक्ट की तकमील के लिए 4 करोड़ 22 लाख रुपए मख्तस किए गए, जिसके तहत चार मीनार और इसके अतराफ़ इलाकों में खुसूसी रोशनियों का इंतज़ाम किया जाएगा। तेलंगाना के वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने कहा है कि उस्मानिया जनरल अस्पताल की नई इमारत की तकमील के लिए जल्द ही संग बुनियाद रखा जाएगा। हैदराबाद में बेस्ट हॉस्पिटल्स अवार्ड 2024 तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर सेहत ने कहा कि सरकारी दवाखानों में बुनियादी तिब्बी सहूलतों को बेहतर बनाने के लिए हुकूमत ने कई इक़दाम किए हैं। सरकारी दवाखानों में बेहतर इलाज और असली आलात के लिए फ़ंड जारी किए गए। उन्होंने कहा कि उस्मानिया अस्पताल की नई इमारत के लिए गोशा महल में अराजी मख्तस की गई है और जल्द ही तामीरी कामों का आगाज़ होगा। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी हुकूमत सेहत और तालीम के शोबेजात को अवलीन तरजीह दे रही है।
तेलंगाना में सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ ने कहा कि बीआरएस के 10 साल दौरे हुकूमत में 50,000 मुलाजमतों पर तकर्रुरात किए गए, जबकि कांग्रेस ने 9 माह में 50,000 से जायद सरकारी मुलाजमतों पर तकर्रुरात करके बेरोजगार नौजवानों से वादे की तकमील की है। गांधी भवन में अरकान कानून साज कौंसिल जनाब आमिर अली खां और बी वेंकट के हमरा मीडिया से बात करते हुए महेश कुमार गौड़ ने रेवंत रेड्डी हुकूमत की 1 साला कारकर्दगी के जश्न को हक बजानिब करार दिया। उन्होंने कहा कि 1 साल में कांग्रेस हुकूमत ने कई शोबेजात को तरक्की की राह पर गामजद किया है। प्रजा पालना के 1 साल की तकमील पर अवामी जश्न का इनेकाद अमल में आएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इख्तिदार पर आने के बाद सरकारी दवाखानों में तिब्बी सहूलतों में बेहतरी पैदा की है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि हुकूमत 6 गारंटी पर अमल करते हुए 7वें गारंटी के तौर पर रियासत के 4 करोड़ अवाम को इज़हार ख्याल की आज़ादी के तौर पर देती है। रियासत में लॉ एंड ऑर्डर मुकम्मल कंट्रोल में है, जिसकी वजह से तेलंगाना में तरक्की की राह तेज़ हो गई है। बीआरएस के 10 साल दौरे हुकूमत में महकमा पुलिस सियासी दबाव का शिकार थी। कांग्रेस की अवामी हुकूमत में पुलिस को मुकम्मल आज़ादी दी गई। महकमा पुलिस में पैरवी का निज़ाम ख़त्म हो गया है। लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखने के लिए पुलिस को मुकम्मल इख्तियारात दिए गए। महकमा पुलिस और फायर डिपार्टमेंट में 16,000 जायदादों पर तकर्रुरात किए गए हैं। हैदराबाद में SDRF के इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने इन ख्यालात का इजहार किया। तेलुगु फिल्म स्टार अल्लू अर्जुन ने पुष्पा 2 प्रीमियर शो के दौरान हैदराबाद के संध्या थिएटर के पास पेश आए भगदड़ वाक़े पर रद्दअमल का इजहार करते हुए तशवीश का इजहार किया। इस मुसीबत की घड़ी में मुतासरा खानदान के दुख दर्द में साथ रहने का उन्होंने ऐलान किया। अल्लू अर्जुन ने सदमे का इजहार करते हुए सोशल मीडिया में वीडियो जारी किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि हम पुष्पा 2 प्रीमियर शो के लिए RTC क्रॉस रोड पर मौजूद संध्या थिएटर पहुंचे थे। भगदड़ में चंद लोग जख्मी होने की इत्तला मिली। इस हादसे में 2 बच्चों की मां रेवती हलाक हो जाने की इत्तला मिलने पर फिल्म यूनिट सदमे से 2 चार हो गई। अल्लू अर्जुन ने कहा कि वो रिवायत के मुताबिक गुज़िश्ता 20 साल से थिएटर पहुंचकर अपने शायकीन के साथ मिलकर फिल्म देखते हैं। शायकीन का जोश बढ़ाने के लिए थिएटर पहुंचने पर हादसा पेश आ जाने से इन्हें बेहद अफसोस हुआ है। वो रेवती के ख़ानदान से इज़हार ताज़ियत पेश करते हैं। कितना कुछ भी कर लें, इनके कमी को कभी पूरा नहीं किया जा सकता। वो अपनी तरफ से रेवती के अरकान ख़ानदान को 25 लाख रुपए की माली इमदाद देने और मुतासरा ख़ानदान से मुलाकात करने का फैसला किए हैं। इंडियन एयरफोर्स के एयर शो की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। एयरफोर्स की सूर्या किरण एरोहेटिक टीम इतवार के रोज़ शहर हैदराबाद में दम बखुद कर देने वाले एयर शो का मुजाहरा करेगी। ये टीम हैदराबाद शहर के क़ल्ब में वाक़ तारिख़ी हुसैन सागर पर इतवार के रोज़ 3 बजे से शाम 5 बजे तक एयर शो डिस्प्ले करेगी। इंडियन एयरफोर्स के आउटरीच प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर यह एयर शो मुनक़िद किया जाएगा। ये एयर शो तमाशाओं के लिए यादगार रहेगा। सूर्या किरण की टीम इस शो में दम बखुद कर देने वाले मुजाहरे करेगी, जिसमें उठी परवाज़ के करतब भी शामिल हैं। सूर्या किरण टीम हॉक M के 132 के 9 तैयारों पर मुश्तमिल है। रियासत तेलंगाना में जारिया साल मेडिकल काउंसलिंग में BUMS की 54 में से 30 नशिस्तें मखलूआ हैं, जिसे पुर करने का BUMS में दाखिले के ख्वाह उम्मीदवार और इनके वालिदैन और सरपरस्त हजरात मुतालबा कर रहे हैं। इस ज़िमन में जनाब आमिर अली खां रुकन कानून साज कौंसिल की हिदायत पर सियासत हेल्प डेस्क के एक वफ्द ने, जिसमें मोहम्मद रियाज अहमद, सैयद खालिद मुहिउद्दीन असद, मेडिकल एक्सपर्ट अब्दुल रब आरिफ और इकरा ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स के सदर डॉक्टर मोहम्मद तंजील मुनव्वर, ऑर्थोपेडिक सर्जन व दीगर शामिल थे। उन्होंने निज़ामिया तिब्बी कॉलेज पहुंचकर वहां का दौरा करने पहुंची डायरेक्टर आयुष तेलंगाना मोहतरमा चिंतम लक्ष्मी से मुलाकात करके याददाश्त हवाले की। इस मौके पर प्रिंसिपल गवर्नमेंट निज़ामिया तिब्बी कॉलेज शहजादी बेगम और दूसरे प्रोफेसर भी मौजूद थे। मोहतरमा लक्ष्मी ने वफ्द को तयक़ुन दिया कि वो इस मसले पर हमदर्दाना गौर करेंगे। उन्होंने सियासत की टीम की जानिब से याददाश्त पेश करने को KNRUHS को फॉरवर्ड करने प्रिंसिपल शहजादी बेगम को हिदायत दी।